Hello everyone. So welcome back, and in this particular video and in the next video also we'll be looking into some of the basic terminology related to agriculture, specifically from agronomy. So we'll be looking into cropping pattern, cropping system, right, crop rotation, mixed cropping, farming system, multi-storied cropping. So we'll be looking into different terms and related concepts. Now, why these are important? So let me explain it to you by showing you a question from prelims. Okay, so this is a question from 2018. Now why you need to know this basic terminology, right? If you look at the question, uh, so let me read it. With reference to circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes importance or assumes significance. So which of the following fall under conservation agriculture practices? So which of the following practices can be called as conservation agriculture practices? Now here, if you are familiar with the terminology, you can easily eliminate the options and choose the correct one. But if you are not familiar with the terminology and the concepts, then there will be confusion, right? So avoiding monoculture practices, so you need to have a basic idea what is monoculture, monocropping. So these terms are important. Now adopting minimum tillage, so you need to, will in the coming videos we will see what is tillage, what is conventional tillage, what do you mean by conservation tillage, and extreme form, that is zero tillage. We'll discuss these topics later in the upcoming videos, right? So here, see, you need to understand the concept of the minimum tillage, monoculture. You need to understand this term, right? You need to have a basic understanding of terminology. Avoid the cultivation of plantation crops. So this is one of the option. See, adopting spatial and temporal crop sequencing and crop rotation. Now see, crop sequence, crop rotation. So you need to have a basic understanding of this terminology. So इसलिए terminology important. So when you're reading a article in the newspaper also, you will come across certain terms. So if you have a basic understanding, then you can easily go through that particular article and understand the concept and arguments. Now, so this is just to show you why you need to understand the basic terminology and have a idea about those terms, right? Now we will start with the basic terms that are used in agronomy or agriculture, right? Agronomy is a subject of agriculture, all right? So first we will start with cropping pattern and then we will understand what is cropping system. ठीक है, पहले क्रॉपिंग पैटर्न समझेंगे, उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है वहां पे जाएंगे, ठीक है? नाउ first, the term that we are going to understand is cropping pattern. Now, so what do you mean by cropping pattern? So very, in very simple words, cropping pattern का मतलब क्या है? In very simple words, cropping pattern is the crop that is grown by majority of the farmers in the area. So एक एरिया में मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स जो क्रॉप लगा रहे हैं वही उस एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न है. ये सिंपल वर्ड्स में मतलब है क्रॉपिंग पैटर्न का. सो द क्रॉप विच इज ग्रोन बाय मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स इन द एरिया इज कॉल्ड द क्रॉपिंग पैटर्न. So cropping pattern is the crop rotation that is followed or practiced by majority of the farmers in a given area, right? Suppose एक एरिया में majority of the farmers paddy grow करते हैं, so it is rice based cropping pattern. अगर majority of the farmers एक एरिया में शुगर केन ग्रो करते हैं तो शुगर केन बेस्ड, मेज ग्रो करते हैं तो मेज बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न है. ओके, सो दीज cropping pattern is the crop that is grown by majority of the farmers in the area. So इसको और एक तरह से कैसे बोलेंगे? So types and arrangement of crops in time and space. Okay, so
टाइम एंड स्पेस जो है, these are important dimensions, right? So majority of the farmers एक एरिया में जो क्रॉप ग्रो करते हैं उस एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न उस क्रॉप के ऊपर बेस्ड है. सो राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न या फिर मेज बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न, कॉटन बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न, ओके, व्हीट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न. सो ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप्स एंड फैलो ऑन ए गिवन एरिया. नाउ यहां पर क्रॉप रोटेशन जो बोल रहे थे ना हम लोग, द क्रॉप रोटेशन दैट इज फॉलोड बाय majority of the farmers in an area. So crop rotation is defined in spatial and temporal terms. So यहाँ पर वही yearly sequence, तुम साल में कौन से क्रॉप्स लगाते हो, ओके, ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप्स एंड फैलो. क्योंकि क्रॉप रोटेशन जो है ना, क्रॉप रोटेशन इज बेसिकली द सीक्वेंस of crops that is grown by the farmer on his particular land. So suppose खरीफ में राइस लगा रहा है फार्मर, ओके, खरीफ के बाद रबी में व्हीट लगा रहा है, एंड समर में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल एंड इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रॉपरली नहीं होता है बिकॉज कैनाल के थ्रू ही आएगा. सो रबी में जीरो, सॉरी योर जायद, ये खरीफ है, रबी एंड जायद बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर ही इज नॉट ग्रोइंग एनीथिंग. तो ये फैलो है. फैलो मीन्स खाली छोड़ दिया तुमने, कुछ ग्रो नहीं कर दो. सो क्रॉप रोटेशन ऑल्सो इंक्लूड्स फैलो. सो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स ग्रोन बाय द फार्मर इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑन हिज पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड. सो राइस, व्हीट एंड फैलो. तो ये एक एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न है. तो यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर जो है खरीफ में राइस ग्रो करते हैं, बट जो तुम्हारा रबी सीजन है, सम ऑफ देम दे ग्रो either mustard, others may go for vegetables, some of them they grow wheat. तो राइस यहाँ का मेन क्रॉप है. व्हीट भी ग्रो करते हैं रबी में. देर आर मस्टर्ड, some farmers they go for mustard, other farmers they go for vegetables and other crops, some go for chickpea. Okay, so rice based या rice wheat based क्रॉपिंग पैटर्न है यहाँ का. सो फैलो भी हो सकता है. फैलो मीन्स दे आर ग्रोइंग नथिंग. उस सीजन में फील्ड तुम्हारा खाली है, तुमने कुछ ग्रो नहीं किया. दैट इज कॉल्ड एज फैलो. तो क्रॉप रोटेशन ऑल्सो इंक्लूड्स फैलो. तो ये रोटेशन है, सीक्वेंस ऑफ क्रॉप ग्रोन बाय द farmer on his piece of land in a particular period of time. So this particular period of time may be 1 year or it can extend beyond 1 year also. So rice, wheat, fallow, rice, wheat, fallow, ये उस एरिया का क्रॉप रोटेशन है. So majority of the farmers they are going with these crops. So ये rice based cropping pattern या rice wheat based cropping pattern. So the proportion of area under various crops at a particular point of time in a unit area. So हम जब भी rotation को define करते हैं तो we are defining it with respect to space and time. Okay, so majority of the farmers, simple शब्दों में majority of the farmers एक particular area में जिस crop को grow करते हैं वहाँ का cropping pattern वो crop based है. So rice based cropping pattern और rice wheat based cropping pattern. Okay, so cropping pattern चेंज होता रहता है. क्रॉपिंग पैटर्न इज डायनेमिक. वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड. सपोज मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो एरिया में बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड दे हैव चेंज द क्रॉप. सो फॉर एग्जांपल हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, पंजाब, दिस वाज प्राइमरली व्हीट ग्रोइंग रीजन. ये प्राइमरली व्हीट ग्रोइंग रीजन था. यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न व्हीट बेस्ड था. बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेटर ईयर्स 80s 90s से ये प्रिडोमिनेंटली राइस ग्रो करना शुरू कर दिया. तो यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न है दैट हैज चेंज्ड. क्रॉपिंग पैटर्न सेम नहीं रहता है. वेस्ट बंगाल फॉर एग्जांपल प्राइमरली राइस ग्रोइंग रीजन है, बट
लेटर वी हैव सीन वहां पर वीट भी ग्रो करने लग गए इन द नॉर्दर्न पार्ट्स। वेस्ट बंगाल में नॉर्दर्न पार्ट्स में वीट भी ग्रो करने लग गए। हरियाणा में ग्रेप्स कल्टीवेशन शुरू हो गया। पहले ग्रेप्स नहीं होता था वहां पर, ग्रो करते थे, अब ग्रेप भी ग्रो करना शुरू हो गए। सो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसा है, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज फार्मर्स टू ग्रो ए पर्टिकुलर क्रॉप, गवर्नमेंट क्या करता है, सिंपली एमएसपी को इंक्रीज कर देता है। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर इंक्रीज करेंगे गवर्नमेंट, तो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स के लिए एक क्लू है कि वो वाला क्रॉप ज्यादा ग्रो करो। सो उस क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। इफ द गवर्नमेंट वांट्स द फार्मर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप, वो सिंपल क्या करती है, एक इंडिकेशन देती है बाय इंक्रीजिंग द एमएसपी। तो मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स वो वाला क्रॉप ग्रो करने लगते हैं, बिकॉज मिनिमम गारंटीड है कि गवर्नमेंट उतने रेट पे तो खरीद ही लेगी। इवन दो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, पर गवर्नमेंट तो एमएसपी पे खरीद लेगी ना। दैट इज अनाउंस्ड बिफोर द क्रॉप इज ग्रोन। सीजन शुरू होने से एमएसपी, सीजन शुरू होने से पहले ही एमएसपी अनाउंस कर देते हैं, ताकि फार्मर्स को इंडिकेशन है वो कि वो वाला क्रॉप लगाने से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट विल एटलीस्ट एट दैट प्राइस गवर्नमेंट विल परचेज irrespective of the price in the market, because it can increase or decrease, and farmer is always free। वो मार्केट में बेच सकता है, अगर मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा है उसको, तो he can always go to the market। सो गवर्नमेंट ने भी डिफाइन किया है क्रॉपिंग पैटर्न। सो इन 1916 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल पर्पसेस गेव द डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? The proportion of area under various crops at a particular time in a given area. So that is cropping pattern. Okay, and cropping pattern keeps on changing depending upon the market demand, depending upon the input availability. Suppose एक एरिया में मेज का डिमांड ज्यादा है, मेज का डिमांड बढ़ गया है, लेकिन फार्मर के पास मेज का सीड भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना। बिफोर ही गोज फॉर सोइंग ही नीड्स इनपुट्स। तो वो सीड होना चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड। उसको मार्केट में सीड ही नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे ग्रो करेगा, राइट? सो क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स। सो अगर फार्मर को किसी क्रॉप का हाई यील्डिंग वैरायटी मिलता है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ही विल गेट हायर यील्ड, ही विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप। हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज अगर हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन मीन्स दे विल कम टू हार्वेस्ट विद इन 4 months, मैक्सिमम 4 महीने में वो हार्वेस्ट पे आ जाएगा, 100 days, 110 days और 120 days। लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज दे टेक लॉन्गर टाइम, 5 या 6 months टाइम लेते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज विल कम टू हार्वेस्ट विद इन 110 days और समथिंग। सो ही कैन ग्रो 2 crops इन ए ईयर, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तो। सो high yielding varieties, short duration varieties, incentives and innovations provided by the center and the state governments. Now innovation means new technology, high yielding varieties, availability of fertilizers, subsidized fertilizers, availability of pesticides, availability of labor. So all these things, they affect the cropping pattern. So cropping pattern, farmer कौन सा crop choose करता है लगाने के लिए, वो इन सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। लेबर अवेलेबल नहीं है, बट सपोज एक क्रॉप है, उस क्रॉप में लेबर ज्यादा लगता है। अगर लेबर अवेलेबल नहीं है तो वो क्रॉप क्यों लगाएगा फार्मर? बिकॉज फार्मर को लेबर की जरूरत पड़ेगी। अगर लेबर अवेलेबल नहीं होगा, देन फार्मर विल नॉट ग्रो दैट पर्टिकुलर क्रॉप। ऐसा क्रॉप चूज करेगा जहां पे लेबर कम हो, राइट? सो फार्मर का चॉइस जो है, इट ऑल्सो डिपेंड्स हेवीली ऑन द मार्केट। अगर उस क्रॉप के लिए मार्केट ही अवेलेबल नहीं है, फार्मर वो क्रॉप लगाएगा ही नहीं। सो मार्केट अवेलेबिलिटी शुड ऑल्सो बी देयर, बिकॉज बेचना है ना फार्मर को। इंडिया में एक शुरू से प्रॉब्लम रहा है मार्केटिंग का, इंडियन एग्रीकल्चर में। सो मार्केटिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यू इन इंडियन एग्रीकल्चर। प्रॉपर मार्केट्स अवेलेबल होने चाहिए, ओके, फॉर द फार्मर टू सेल हिज प्रोड्यूस एज सुन एज पॉसिबल एट ए प्रॉपर प्राइस। सो विल लुक इनटू मार्केटिंग लेटर, हम लोग कमिंग वीडियोस में एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके प्रॉब्लम्स, क्या इनोवेशंस हुए उस केस में, या फिर क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? सो क्रॉपिंग पैटर्न इट ऑलवेज चेंजेस, ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड। अगर सपोज मार्केट में वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का ज्यादा डिमांड है, ओके, पल्सेस का ज्यादा डिमांड है, तो फार्मर ऑफ कोर्स विल स्विच टू दोस क्रॉप्स।
जिसका ज्यादा डिमांड होगा उसका ज्यादा प्राइस होगा, तो फार्मर वो मार्केट को भी देखते रहते हैं, किस क्रॉप का ज्यादा डिमांड है, जिसके प्राइसेस ज्यादा जा रहे हैं, तो फार्मर भी स्विच करेगा टू दोज क्रॉप्स. So we'll see what are the different factors that affect cropping pattern. Now, let us take a look at different cropping pattern of different regions. अलग अलग region में different cropping pattern है, उसको हम लोग देखते हैं. ठीक है. So Indo-Gangetic plains में the cropping pattern that is followed in Indo-Gangetic plains. So north में Indo-Gangetic plains में northern part में the most common pattern here is rice wheat based cropping pattern. और क्यों है? बिकॉज फर्टाइल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, इरिगेशन अवेलेबल है यहाँ पर. सो बिकॉज राइस के लिए ज्यादा वाटर चाहिए, सॉइल इज फर्टाइल एंड इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल. तो ये प्रिडोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न है, मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स ये वाला क्रॉप ग्रो करते हैं. अदर पैटर्न्स भी हैं कुछ डिफरेंट एरियाज में, उधर ही ये जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन, इट इज अ वेरी लार्ज एरिया. इन सम पार्ट्स a different pattern is also seen. So other patterns include maize and wheat based cropping pattern, sugarcane and wheat based. These are minor cropping patterns followed in particular areas. So in states like Uttar Pradesh, Punjab and Haryana, ये तुम्हारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेल्ट माना जाता है, ये वाला एरिया वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. तो यहाँ पर मेनली राइस एंड व्हीट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न है, एंड in other small pockets different cropping pattern can also be seen. Then plateau region में, central and Deccan region में, a mixed cropping pattern is found featuring jowar, bajra and pulses and also groundnut. So parts of Gujarat, parts of महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ये वाला क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होता है. ईस्टर्न कोस्ट में, इफ यू सी द ईस्टर्न कोस्ट, राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न है. राइस कुछ डेल्टा रीजन्स जो है तुम्हारा, गोदावरी, कावेरी, कुछ एरियाज में तो साल में 3 बार राइस ग्रो करते हैं. शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज हैव अलाउड अस टू गो फॉर 3 क्रॉप्स आल्सो. सो राइस मोनोकल्चर फॉलो होता है कुछ एरियाज में. सो राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न है बोथ खरीफ एंड रबी. सो कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर रबी में तो लो टेम्परेचर्स होते हैं. लो टेम्परेचर्स नॉर्थ इंडिया में होता है, साउथ में विच इज कोस्टल एरिया, बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीजेस द टेम्परेचर इज मॉडरेट. सो वहां पर तुम 3 क्रॉप्स लगा सकते हो. whereas in north area the rabi has chilling temperatures, so rabi season in north India is not suitable for paddy. But whereas in case of coastal areas where temperatures are always moderate because of the coastal environment, तो वहां पर तुम तीनों सीजन में पैडी ग्रो कर सकते हो. सो वेस्टर्न कोस्ट, सो कोकोनट, पैडी एंड बनाना बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न. ओके, ये डोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न है. सो विथ पैडी दैट इज ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड कोकोनट बनाना, ये तो पेरिनियल क्रॉप्स है तुम्हारे. ओके, नाउ इन सदर्न इंडिया, rice, ragi, and maize based cropping pattern, it is common. So rice and groundnut is a significant pattern in states like Tamil Nadu and Andhra Pradesh, especially जो तुम्हारा रायलसीमा वाला region है आंध्र प्रदेश में, northern parts of Tamil Nadu, we see this groundnut based cropping pattern. Himalayan region, if you see, wheat and maize based cropping pattern है, whereas जो हिमालयन रीजन के तुम्हारे वैली रीजन है वहां पर मेज प्राइमरली ग्रो होता है. एंड ऑल्सो वी हैव ऑर्चर्ड्स, एप्पल एंड टेम्परेट अदर टेम्परेट क्रॉप्स लाइक पियर, वो ग्रो होते हैं. कॉटन बेस्ड, ये स्पेशली तुम्हारा जहां पर ब्लैक सॉइल है प्राइमरली, इट इज पॉपुलर इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश. सो ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं. ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगुर सॉइल. सो ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, वंस इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट कैन रिटेन वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच इज स्पेसिफिकली सूटेबल फॉर कॉटन इन ड्राईलैंड सिचुएशन. सो जहां पर रेन फेड फार्मिंग है, स्पेशली वहां पर लॉन्ग टाइम तक
सॉइल वाटर को होल्ड करके रख सकता है, स्पेशली बिकॉज इट हैज क्ले मिनरल, स्पेक्टाइट क्लेस हैं, मोनोलाइट that can absorb water for a long period of time. So it is suitable for cotton. That is why these soils are called as black cotton soils. Then we have groundnut based. So it is common in Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu. So तुम्हारा ग्राउंडनट रिसर्च सेंटर भी है गुजरात में. ओके, सो पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, स्पेशली जो रायलसीमा वाला रीजन है, गुजरात, कर्नाटका, ड्राई एरियाज, वहां पर ग्राउंडनट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करते हैं. सो राइस बेस्ड ये डोमिनेंट है कौन से पार्ट में? वेस्ट बंगाल. सो स्पेशली इन वेस्ट बंगाल राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न, डेल्टा रीजन है इसलिए. while other parts में सी cropping pattern where rice and pulses or groundnut they are grown. Okay, so these are the cropping pattern that is followed in different regions. तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के कौन से पार्ट में क्या क्रॉपिंग पैटर्न है. सो ये इंपॉर्टेंट है. नाउ what are the different factors that affect cropping pattern? Okay, so with example, एक एक एग्जाम्पल के साथ तुमको समझाऊंगा तब तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा. सो फर्स्ट, climatic factors. So what crop you can grow, it significantly depends upon the climate of the region. So climate is the primary factor. So कौन सा क्रॉप लगाओगे, एक रीजन में फार्मर्स कौन से क्रॉप चूज करते हैं, दैट इज प्राइमरली डिसाइडेड बाय द क्लाइमेट. उसके बाद सॉइल. ओके, देन मार्केट, ऑल दोस थिंग्स. क्लाइमेट प्राइमरी डिटरमाइनिंग फैक्टर है. सपोज फॉर एग्जांपल कोकोनट, मैं तुमको आइडिया मिले इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ. कोकोनट, कोकोनट यू सी तुमको कोस्टल एरिया में ही ग्रो कर सकते हो, बिकॉज कोकोनट को ह्यूमिडिटी चाहिए, 70% और मोर ह्यूमिडिटी, एटलीस्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीरियड. दैट इज अवेलेबल ओनली इन द कोस्टल पार्ट्स. तुम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में कोकोनट नहीं देखोगे. सिमिलरली एक और एग्जांपल है बनाना. सो बनाना भी तुमको वार्म क्लाइमेट में मिलेगा, ट्रॉपिकल है ये क्रॉप्स. सो वार्मर रीजन से मिलेगा तुमको कोस्टल एरियाज में. ओके, एंड नॉर्दर्न प्लेन्स में तुमको बनाना कल्टीवेशन नहीं दिखेगा. यू विल नॉट सी बनाना कल्टीवेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. दिल्ली में तुमने कहीं गलती से या फिर अदर स्टेट्स आल्सो नॉर्दर्न प्लेन्स में बनाना प्लांट कहीं देख लिया होगा एक दो, बट यू विल नॉट सी फ्रूटिंग ऑन देम. इजीली तुमको फ्रूट्स ग्रो होते हुए नहीं दिखेंगे. एक दो जगह पर शायद बंचेस आ भी जाएं, बट कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, बिकॉज बनाना flowering is affected by low temperature. If the temperature falls below 10 degrees Celsius, flowering will be significantly affected. That is very common in the winter in the North Indian plains. तो बनाना में एक physiological condition है which is called as choke, जहां पर flowering effect होता है अगर temperature 10 डिग्री से नीचे चला जाए. तो बनाना का एक दो प्लांट्स कहीं दिख जाएगा तुमको, लेकिन कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं होता है बिकॉज ये यील्ड को अफेक्ट करता है. सो लो टेम्परेचर्स विल अफेक्ट द बनाना कल्टीवेशन. दैट इज व्हाई यू विल सी बनाना ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. स्ट्रॉबेरी फॉर एग्जांपल, ये टेम्परेट क्रॉप है. अगर तुमको स्ट्रॉबेरी ग्रो करना है तो यू कैन ग्रो देम ओनली इन द कूल टेम्परेचर्स, कूल क्लाइमेट्स. तुमको चेन्नई में स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन नहीं दिखेगा बिकॉज वहां पर टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्ट्रॉबेरी. क्लाइमेट इज द प्राइमरी डिटरमाइनिंग फैक्टर कि कौन सा क्रॉप लगाएगा. सो क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट. soil is also very important factor. So some soils are suitable for particular crop. For example, black cotton soil बताया था मैंने, जहां पर black cotton soil can absorb moisture and retain it for a longer period of time. So that is particularly suitable for cotton in dryland agriculture or rain-fed farming. जैसे lighter soils हैं where you have higher amount of silt and sand, lighter soils are more suitable for horticultural crops. Loamy soils, they are more suitable for horticultural crops. Heavy soils पैडी के लिए, उनके लिए ठीक है. So soil का pH, other characteristics, they also affect the choice of crop. तो फार्मर कौन सा क्रॉप लगाएगा वो सॉइल भी डिटरमाइन करता है. देन इरिगेशन फैसिलिटी. देखो कुछ क्रॉप्स को ज्यादा इरिगेशन चाहिए. फॉर एग्जांपल शुगर केन हो गया, पैडी हो गया. अगर इरिगेशन नहीं है एक जगह पर
रेनफेड फार्मिंग है, तुम ये क्रॉप्स नहीं लगा सकते हो। सो ज्वार बाजरा वही लगाओगे जहां पर रेनफेड फार्मिंग चल रहा है। सो फॉर high water demanding crops you need to have irrigation facilities. So irrigation facility will also decide what are the crops that are grown by the farmer. Economic factors, ब्रॉडली फार्मर के पास कैपिटल भी होना चाहिए ना। कुछ क्रॉप्स के लिए ज्यादा लेबर लगता है, तो लेबर को तो तब का तब पॉकेट से पे करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स, फार्मर का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, दिस ऑल्सो, आई मीन वेदर द फार्मर विल बी एबल टू परचेज द इनपुट्स और नॉट। उसको कुछ क्रॉप्स के लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, लेबर ज्यादा लगता है, जैसे चिल्ली हो गया, टोबैको हो गया, वीडिंग के लिए उसके लिए लेबर चाहिए होता है ज्यादा। फॉर पिकिंग ऑल्सो यू रिक्वायर मोर लेबर। वेजिटेबल्स के लिए ज्यादा लेबर लगता है, भिंडी टोमेटो, उसके लिए पिकिंग हार्वेस्ट करना है तो लेबर ज्यादा लगता है। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो डिसाइड, ही नीड टू परचेज इनपुट्स, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें खरीदनी है तो उसको पैसा भी चाहिए। दैट ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट क्रॉप द फार्मर इज गोइंग टू सेलेक्ट। देन मार्केटिंग फैसिलिटीज, भाई अगर कोई क्रॉप लगा रहा है फार्मर तो वो उसका मार्केट भी होना चाहिए। ये एक मेन लिमिटिंग फैक्टर है इंडियन एग्रीकल्चर में कि फार्मर्स ना, मार्केट शुड प्राइमरली ड्राइव द क्रॉपिंग पैटर्न। बट हम लोग क्रॉप लगा लेते हैं, फार्मर्स क्रॉप लगा लेते हैं, उसके बाद मार्केटिंग प्रॉब्लम बन जाता है, मार्केट्स बाद में ढूंढता है फार्मर, पहले मार्केट है कि नहीं वो देखना चाहिए। सो प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, फॉर्मल मार्केट्स होने चाहिए जहां पर तुमको कोई चीटिंग ना हो, फार्मर्स को फेयर प्राइस मिले, स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल होने चाहिए, वो सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फैसिलिटीज ये भी होना चाहिए। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ये बहुत चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, फॉर एग्जांपल स्टोरेज फैसिलिटीज, हाँ, इनपुट्स, क्वालिटी इनपुट्स, ओके, मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, ये सब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे आता है। सो फार्मर शुड हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो यहाँ पर प्राइसिंग पॉलिसी, फॉर एग्जांपल एमएसपी का एग्जांपल ले लो। सो फार्मर कौन सा क्रॉप लगाएगा, ये एमएसपी ड्राइव करता है। सो अगर एमएसपी बढ़ा देता है गवर्नमेंट किसी क्रॉप का, तो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स विल स्विच टू दैट क्रॉप। So government policies can also affect the cropping pattern. Social and cultural factors ये भी है। Now इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पंजाब रीजन which is very suitable for growing of tobacco, but because the religion does not allow the farmers, religion tobacco consumption या intoxicating substances को religion बैन करता है, तो religion में मना है, तो farmers, even though the soil is very suitable, climate is very suitable, they don't go for tobacco. So that is another example of social and cultural factor, religious factors भी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। So that was your cropping pattern. All right, so we'll look into other terms later, एक एक करके we'll decide, we'll go further, फिर बाद में क्रॉपिंग सिस्टम देखेंगे, क्रॉपिंग स्कीम, अदर crop rotation, all those will cover them in the upcoming videos. All right, so that was cropping pattern and what are the different factors affecting cropping pattern. Thank you very much.